Dear students, in last class we studied about mutual induction. We used to say there are two types of mutual induction. There are two types of induction. First one is known as mutual induction. In case of mutual induction, induction of current, induction of EMF takes place in one coil and current changes in another coil. Means there is mutual cooperation of both coils in induction. That's why process is known as mutual induction. Another induction is self-induction. In this very case, induction takes place in the coil, one coil, and in the same coil, current changes. Means करंट चेंज उसी कॉइल में होगा और फिर उसी के चलते इंडक्शन भी उसी में होगा. म्यूचुअल इंडक्शन में प्राइमरी में करंट चेंज होता था, उसके चलते सेकेंडरी में इंडक्शन होता था. बट इन दिस वेरी कॉइल change in current will take place the same coil, change in current as well as induction takes place in the same coil. That's why this type of induction is known as self induction. Today we are going to know self induction in detail, right? We used to say it is phenomenon of induction of electric current as well as EMF in a coil due to change in current in itself. उसी कॉइल में करंट चेंज होगा, उसी कॉइल में EMF और करंट का इंडक्शन होगा. क्वेश्चन इज हाउ. देन टू नो दैट, कम ओवर द फिगर. सी फिगर नंबर 1. See this very figure number 1. Here you have a coil which is connected to a cell, a key and a rheostat. Question is this कि what is the use of rheostat? तो जरा सा पहले आ जाइए कि first you see it is connected to a cell and when you will on switch then current will flow in the coil, right? Current will flow in the coil. करंट तो फ्लो करेगा. आपने कहा था कि इंडक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन करंट. Question is this कि how we can change current in this circuit. Then to change current in this circuit there is a instrument, means resistance should vary in this circuit because resistance opposes current, right? तो resistance हमको circuit में vary करना है. It means there is need of variable resistance. Then the instrument which provides variable resistance in a circuit is known as rheostat. That's why here rheostat is given, right? It means that by the help of this very rheostat we will allow different amount of current to pass through the circuit. Means we will change current in the circuit, right? तो let us suppose at any time t, मान लो किसी समय t टाइम में current I is flowing and let us see here terminal of the cell का टर्मिनल आप ध्यान से देख लीजिए, it is towards left, so current will flow from left side. देखते जाओ बाबू, करंट में जो है कैसे फ्लो कर रहा है. करंट जो है लेफ्ट वाले वायर से ऊपर चल रहा है, लेफ्ट वाले वायर से ऊपर चल रहा है. एंड आफ्टर दैट वह जहाँ से टर्निंग होना शुरू हो रहा है वहाँ से करंट तुम्हारे तरफ आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर इन बैक डायरेक्शन. एंड सेम प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन ईच एंड एवरी टर्न. आपके तरफ आया, देन डाउनवर्ड एंड देन बैक, और फिर उसी तरह से हर एक टर्न में फ्लो कर रहा है, राइट? Then now my dear you tell me, due to this very current there will be magnetic field in the coil, inside the coil or not? It means that there will be field lines passing through the coil or not? It means that there will be flux associated with each and every turn of the coil or not? होगा. And now you tell me, EMF will be induced only when flux will vary. And flux can vary when magnetic field will mean when field lines will vary. Field lines will vary only when field will vary, and field you can vary by changing current in the circuit. It means that by using rheostat, here we will change current, due to which field will change, field lines will change, flux will change, and due to change in flux there will be induced EMF as well as induced current in the coil, right? होगा. चलिए हमने मान लिया इंड्यूस्ड करंट होगा, इंड्यूस्ड EMF होगा. क्वेश्चन इज दिस, व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ दिस वेरी इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड EMF?
तो अकॉर्ड हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ दिस वेरी इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोजेज द कॉज ड्यू टू विच इट इज़ प्रोड्यूस्ड। यह जिसके चलते प्रोड्यूस हुआ है उसको अपोज करता है। किसके चलते प्रोड्यूस हुआ है? ड्यू टू इंक्रीज इन करंट, ड्यू टू इंक्रीज इन फील्ड, ड्यू टू इंक्रीज इन फील्ड लाइंस, ड्यू टू इंक्रीज इन फ्लक्स, राइट। तो इंक्रीज इन फ्लक्स को अपोज करें, इंक्रीज इन फील्ड लाइंस को अपोज करें, इंक्रीज इन फील्ड को अपोज करें। आई एम कमिंग ओवर फील्ड लाइंस। फर्स्ट टू टेल मी कि जो है जब करंट लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है लूप में तो उसके चलते फील्ड लाइंस का शेप क्या होगा? फॉर दैट यू होल्ड योर करंट कैरिंग वायर बाय राइट हैंड इन सच ए वे दैट कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। देन direction of thumb indicates direction of field. It means that here right end of the loop will act as north pole, right end of the solenoid will act as north pole and left end will act as south pole. Then inside the solenoid field lines will be from south to north, left से right होगा, right? और जब left से right होगा बाबू, then with increase in current what will happen to number of field lines? It will increase। और field lines increase कर रहा है, flux increase करेगा, induced EMF induced current होगा। क्वेश्चन is this कि what will be direction of induced current? तो हमने अभी कहा इंड्यूस्ड करंट यह होगा जिसके चलते प्रोड्यूस हुआ है उसी को अपोज करेगा। इंड्यूस्ड करंट हुआ है ड्यू टू इंक्रीज इन फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइंस तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए कि इंक्रीज इन फील्ड लाइंस को अपोज करें। इंक्रीज इन फील्ड लाइंस को अपोज करें मीन्स अगर जो है लेफ्ट से राइट फील्ड लाइन जो है लेफ्ट से जो राइट है ड्यू टू मेन करंट के चलते वह 5 से 7 हुआ है, तो अगर 2 फील्ड लाइंस राइट टू लेफ्ट हो जाए ड्यू टू इंड्यूस्ड देन देयर विल बी नो चेंज। इट मीन दैट जब इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा, जब इंड्यूस्ड करंट इसमें फ्लो करेगा, इट मीन दैट कॉइल विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट, उसके चलते मैग्नेटिज्म होगा, उसके चलते फील्ड लाइंस होगा, उसका फील्ड लाइंस का डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होने चाहिए। अब अगर उसके चलते फील्ड लाइंस का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होना चाहिए मीन्स फील्ड का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होना चाहिए इनसाइड द सोलोनाइड, तो करंट का डायरेक्शन लूप में कैसे होना चाहिए? देन टू नो दैट आप क्या कीजिए, राइट हैंड का थंब का कर दीजिए डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लूप के में जो है देन, और तो देखिए आपका कर्लिंग लूप पर किधर हो रहा है, कर्लिंग जो आपका हो रहा है जो है क्या करेंगे ऊपर से नीचे की ओर। इट मीन दैट कि जो है आपके तरफ से करंट चल करके फिर ऊपर से होते हुए नीचे जाएगा। इट मीन दैट डायरेक्शन विल बी अपोजिट, इट मीन दैट यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? देन यू कैन से जो मेन करंट है जो लेफ्ट से राइट फ्लो कर रहा है, मेन करंट जो है लेफ्ट से राइट फ्लो कर रहा है, जो इंड्यूस्ड करंट होगा दैट विल फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और नॉट। इट मीन दैट यू कैन से कहीं न कहीं यह जो अप्लाइड ईएमएफ है उसको अपोज कर रहा है, जो मेरा अप्लाइड ईएमएफ है उसको अपोज कर रहा है, एंड ड्यू टू दिस वेरी रीजन इट इज आल्सो नोन एज बैक ईएमएफ, राइट। कम ओवर अनदर फिगर। See figure number 2. In this very coil, again direction of cell is same, terminal of the cell is same, right? But now here we are decreasing current. करंट को डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब जो है रेसिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। शुरू में पहले वाले फिगर में देखिए रेसिस्टेंस मेरा बहुत कम है फंक्शन में, बट नाउ इन दिस वेरी केस रेसिस्टेंस हैज इंक्रीज्ड। तो हमने रेसिस्टेंस जब बढ़ाएंगे तो करंट घट जाएगा। अगेन डायरेक्शन ऑफ मेन करंट मीन्स अगेन डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल ड्यू टू सेल इज सेम बट इट इज ऑफ डिक्रीजिंग नेचर। जब करंट डिक्रीज कर रहा है फील्ड डिक्रीज करेगा, जब करंट डिक्रीज कर रहा है फील्ड डिक्रीज करेगा, फील्ड लाइंस डिक्रीज करेगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा। हियर फ्लक्स इज चेंजिंग, सो देयर शुड बी इंड्यूस्ड करंट एज वेल एज इंड्यूस्ड EMF,
राइट। क्वेश्चन इज दिस, होगा ये तो मान लिया हमने, व्हाट विल बी डायरेक्शन, देन वी कैन से अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट शुड बी इन सच ए वे दैट it should always oppose the cause due to which it is produced or it has produced। जिसके चलते प्रोड्यूस हुआ है उसको अपोज करेगा। किसके चलते प्रोड्यूस हुआ है? डिक्रीज इन करंट के चलते, डिक्रीज इन फील्ड के चलते, डिक्रीज इन फील्ड लाइंस के चलते, डिक्रीज इन फ्लक्स के चलते। आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ओवर डिक्रीज इन फील्ड लाइंस। जो फील्ड लाइंस लेफ्ट से राइट की ओर है वो डिक्रीज कर रहा है। देन नाउ माई डियर यू टेल मी हियर फील्ड लाइंस इज डिक्रीजिंग और इसी के चलते प्रोड्यूस हो रहा है। तो और लेंज लॉ कहता है कि करंट का डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि जिसके चलते प्रोड्यूस हो रहा है उसी को अपोज करे। तो डिक्रीज इन फील्ड लाइंस के चलते प्रोड्यूस हुआ है तो उसको अपोज करे, मतलब डिक्रीज इन फील्ड लाइंस को न होने दे। अगर 5 से 3 हुआ है, 2 घट गया है तो 2 फिर और उसी डायरेक्शन में हो जाए, देन देयर विल बी मीन्स डिक्रीज को चेंज कर रहा है, डिक्रीज को अपोज कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब इसका फील्ड लाइंस का जो शेप हो ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट शुड बी अलोंग द सेम डायरेक्शन जो पहले फील्ड लाइंस का डायरेक्शन था। और जब पहले फील्ड लाइंस का डायरेक्शन था तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? जो पहले था, या फिर नहीं तो राइट हैंड थंब रूल वाला यूज़ कर लीजिए, लूप को राइट हैंड से होल्ड कर लीजिए, थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल यू गिव डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये फिर वही आएगा, टॉप से आपके तरफ, आपसे से नीचे, फिर पीछे, राइट। सही। यहाँ पर अपोजिट क्यों हो गया? हमने थ्योरी से समझा दिया, फॉर्मूला से समझा दिया कि एकदम ये हो रहा है, अपोजिट क्यों होगा? तो सीधे एक बात कहना बाबू कि एक में करंट इंक्रीज कर रहा था और दूसरे में करंट डिक्रीज कर रहा है, बोथ आर ऑफ अपोजिट नेचर। एक में फील्ड इंक्रीज कर रहा था, एक में फील्ड डिक्रीज कर रहा है, बोथ आर ऑफ अपोजिट नेचर। एक में फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रहा है, एक में फील्ड लाइंस डिक्रीज कर रहा है, अपोजिट नेचर। एक में फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, दूसरे में फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, अपोजिंग नेचर। सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट शुड बी ऑफ अपोजिट नेचर, मीन्स दियर डायरेक्शन शुड बी अपोजिट। पहले वाले केस में लेफ्ट तो दूसरे वाले केस में राइट। राइट माय डियर, राइट। नाउ हमने अभी कहा था एज इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेज अप्लाइड ईएमएफ, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज बैक ईएमएफ, राइट। सी वंस अगेन, सी दिस वेरी फिगर। इस फिगर को ध्यान से देखो। करंट तुम्हारा ओरिजिनल करंट लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा था, राइट जो है इंड्यूस्ड करंट राइट टू लेफ्ट। तो अगर इंड्यूस्ड करंट ओरिजिनल करंट लेफ्ट टू राइट है तो माना जाएगा लेफ्ट पॉजिटिव टर्मिनल, राइट नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन इंड्यूस्ड करंट राइट टू लेफ्ट तो उसका पॉजिटिव राइट में और उसका निगेटिव लेफ्ट में। इट मीन दैट दोनों का पोलरिटी यू कैन से डिफरेंट है, दोनों का पोलरिटी डिफरेंट है। इट मीन दैट यू कैन से कि यह जो है उसको अपोज कर रहा है, अप्लाइड ईएमएफ को अपोज कर रहा है। दैट्स व्हाई वी यूज टू से इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेज अप्लाइड ईएमएफ एंड ड्यू टू दिस वेरी रीजन इट इज आल्सो नोन एज बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्यों? क्योंकि उसको अपोज किया। नाउ कम ओवर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। व्हेन करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस, जब सर्किट में करंट इंक्रीज कर रहा है तो जो सेल्फ इंडक्शन हुआ उसने क्या किया? इंक्रीज इन करंट को अपोज किया, ग्रोथ ऑफ करंट को अपोज किया अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। और जब सर्किट में करंट डिक्रीज किया तो सेल्फ इंडक्शन डीके को अपोज, मीन्स डिक्रीज किया मीन्स डीके हुआ करंट का, तो डीके को अपोज किया और नॉट। इट मीन दैट यू कैन से चेंज को अपोज किया। When current in the circuit increases, self-induction opposes growth of current, opposes increase of current. And when current in the circuit decreases, self-induction opposes decrease of current, decay of current. It means that increase हो रहा है तो increase को अपोज किया, decrease हो रहा है तो decrease को अपोज किया, मीन्स चेंज को अपोज कर रहा है। आपने क्लास 11th में पढ़ा था मोशन चैप्टर में इनर्शिया।
Inertia is the property, inertia is an inherent property of a body by virtue of which a body in motion wants to remain in motion, a body in rest wants to remain in rest. मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में रहेगा, मोशन से रेस्ट में नहीं आना चाहेगा, रेस्ट से मोशन में नहीं जाना चाहेगा. एंड दिस वेरी प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया. इट मीन दैट इनर्शिया अपोजिज चेंज. रेस्ट को रेस्ट में है तो रेस्ट में ही, मोशन में है तो मोशन में, रेस्ट से मोशन में नहीं, मोशन से रेस्ट में नहीं आना चाहेगा ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया. एंड सेम थिंग इज इट मीन दैट चेंज नहीं होना चाहेगा, चेंज को अपोज करता है, चेंज नहीं होने देता है. एंड सेम हेयर सेल्फ इंडक्शन इज डूइंग सेम वर्क. एंड ड्यू टू दिस वेरी रीजन, अगर जो है करंट इंक्रीज हो रहा है तो करंट को इंक्रीज नहीं होने दे रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज नहीं होने दे रहा है, मीन्स इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज नहीं, इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होने नहीं दे रहा है, मीन्स अपोज कर रहा है, मीन्स चेंज को अपोज कर रहा है. अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज नहीं होने दे रहा है, अगेन चेंज को अपोज कर रहा है. एंड ड्यू टू दिस वेरी रीजन, दिस वेरी सेल्फ इंडक्शन इज आल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. राइट. नाउ जिस तरह से हमने सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन में हमने कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन डिफाइन किया था, हेयर वी विल डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. जैसे वहाँ डिफाइन किए थे बाबू, इन द सिमिलर प्रोसेस वी विल डिफाइन हेयर. लेट अस सपोज कॉइल हैज n टर्न्स एंड कैरिंग करंट I. इट इज वेल नोन फैक्ट टू यू ऑल दैट टोटल करंट और टोटल फ्लक्स, या फिर जो उसमें कहते थे जो सेकेंडरी में फ्लक्स होगा, जितना प्रोड्यूस होगा, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच एंड एवरी टर्न मीन्स टोटल टर्न विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी. तो यहाँ पर तो प्राइमरी भी वही है, सेकेंडरी भी वही है, करंट भी चेंज इसी में हो रहा है, फ्लक्स भी इसी में चेंज हो रहा है. तो व्हाट वी शुड से कि जो प्राइमरी में जो करंट होगा, मतलब जो करंट होगा और उसके चलते जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा, बोथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से टोटल फ्लक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. राइट. Total flux is, let us suppose flux associated with one turn is phi, and total flux is what you will say, flux associated with one turn is phi and total number of turns is n, so total flux will be n into phi. Right. And current flowing through the coil is I, so we can say n phi will be directly proportional to I. आपने पढ़ा है जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट लाते हैं एंड देन वी यूज टू राइट n इंटू फाइव इजकल टू l इंटू आई. राइट. वहाँ पर लिखे थे n इंटू फाइव विल बी इक्वल टू m इंटू आई, वेयर m इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द coils, and here we will write in the similar fashion l will be, or l is known as coefficient of self induction. L is known as coefficient of self induction. Right. Now how we can define coefficient of self induction? Then see here, you have written n phi is equal to L into I. You have written n phi is equal to L into I. So can we write L will be equal to n phi by I? So here we have written L equal to n phi by I. Now when you will put I equal to 1 ampere in this very formula, then formula will become L will be equal to n into phi. It means that at 1 ampere current, coefficient of mutual induction will be equal to total flux associated with the solenoid. And we used to write coefficient of self-induction is nothing but numerically it is equal to total number of flux associated with the coil when unit current flows through the coil. जब coil से unit current flow करेगा उस समय जो है total coil से या sequence से solenoid से जितना flux associated होगा, that very amount will be numerically equal to self-inductance of the coil. Right. याद कीजिए उसमें हम लोग ईएमएफ के भी टर्म में हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन किए थे. अगेन हियर वी विल डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस इन टर्म ऑफ म्यूचुअल, इन टर्म ऑफ ईएमएफ.
तो हम लोग यह कहते हैं बाबू, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे of electromagnetic induction, we used to say induced EMF is directly proportional to rate of change of flux. Let us suppose, और यहाँ जो induced EMF उसी को हम लोग back EMF कह रहे हैं. So here what we should write, induced EMF or back EMF in the coil will be equal to rate of change of magnetic flux, right? Let us suppose delta t टाइम में फ्लक्स जो, let us suppose जो है डेल्टा टी टाइम में एक कॉइल से डेल्टा फाइव फ्लक्स चेंज हुआ है. ध्यान से सुनेंगी. मान लो कि जो है T1 टाइम में फाइव फ्लक्स किसी कॉइल से था और T2 टाइम में 5 फ्लक्स चेंज हो गया. तो चेंज इन फ्लक्स 5 माइनस 5 इसको हमने डेल्टा 5 कहा. 5 माइनस 5 को हमने डेल्टा 5 कह दिया, राइट. और T2 माइनस T1 को हमने डेल्टा T कह दिया. देन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू वन कॉइल विल बी डेल्टा 5 बाई डेल्टा T. एक टर्न से, द टोटल टर्न से, या तो नहीं कह दो, ऐसे कह दो कि एक टर्न से जो फ्लक्स चेंज किया डेल्टा 5 से, और टोटल n टर्न्स हैं, सो टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू n इंटू डेल्टा 5 एंड टाइम टेकन इज डेल्टा T. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल बी इक्वल टू n डेल्टा 5 बाई डेल्टा T and it is equal to EMF of the coil. It is equal to EMF induced in the coil. So we can write EMF induced will be equal to n into delta 5 by delta T. डेल को आगे रख दीजिए तो हो जाएगा माइनस n विद माइनस साइन, माइनस डेल n इंटू 5 बाई डेल्टा T. और जरा सा देखो तो आपने n इंटू 5 इक्वल टू आपने जो है अब n into 5 इक्वल टू आपने कहा था L into I. So when we will write in place of n into 5, L into I, so it will become minus del L into I by delta T. L is constant. L is constant coefficient of self induction. For any coil it is constant. L को बाहर निकाल दीजिए, then it will become minus L into delta I by delta T. Right? So now here you have written E equal to L di by del I by del T. Then can we write L will be equal to E by delta I by delta T. ध्यान से देखो, E equal to, you have written E equals L into delta I by delta T. Then can we write L equal to E by delta I by delta T. Then see here we have written L equal to minus E into delta I by delta T, right? And now tell, when you will take delta I by delta T, rate of change of current through the coil will be unity, means 1 ampere per second से अगर change करेगा current जो है, then E will be numerically equal to L, means L will be numerically equal to E, and we used to write coefficient of self-induction will be numerically equal to EMF induced in the coil when rate of change of current will be unity. It means that we can say coefficient of self-induction of a coil is numerically equal to EMF induced in the coil when rate of change of current through the coil will be unity, right? It means that यहाँ पर भी हमने जो है जैसे म्यूचुअल इंडक्शन को हम लोग EMF के टर्म में और फिर जो है फ्लक्स के टर्म में डिफाइन किए थे, यहाँ पर भी हम लोग EMF के टर्म में और फ्लक्स के टर्म में डिफाइन कर लिए, राइट? ओके.